آئے، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں جو بھی آیا وقت ولادت مصطفیٰ، وقت ظہور مصطفیٰ، کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی پیدا ہو جاؤ، پیدا ہو جاؤ، بلکہ ہر نبی نے کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید المرسلین، اے نبیوں کے سردار پردہ خفا سے باہر آئیے، پردہ دنیا پر آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بریلی کا امام بولا صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، پانی پیوا، ظہور وجہ کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لے پی ہے نا، بناتے ہیں نا۔ اچھا اپنے بچے کو حسب حیثیت ماں باپ دے دیتے ہیں، بیٹا یہ تیرا گفٹ، یہ تیرا گفٹ ہے، یہ تیرا گفٹ ہے۔ اچھا یہ بات تو پکی ہے کاکر کھیڑے والوں، کائنات کی کوئی سی شے ہو جائے نبی کونین سے عزیز نہیں ہو سکتی، ہے نا، ہمارے نبی سے عزیز نہیں ہو سکتی۔ تو تم نے اب آپ میری 5 یا 10 منٹ کی جو بھی تقریر ہوئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ منا رہے ہیں جشن ظہور کائنات منا رہے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر اسے تحفہ دیا، کاکر کھیڑے والوں اپنے نبی کے جشن ظہور پر اپنے نبی کو کیا تحفہ دو گے؟ کسی کے پاس ہے کچھ دینے کے لیے اپنے نبی کو؟ اچھا یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم 1 کروڑ نبی کے نام پہ دے دو، تحفہ دے دو، میرے نبی تو درود پاک سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا کوئی ہے ایسا یہاں پر کھڑا ہو کر کے کہے کہ میں آج سے اپنے نبی کو سنت رسول سجا کر کے تحفہ پیش کرتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ ہے کوئی؟ آپ کی تو ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جس کی نہیں ہے، کوئی اپنے نبی کو تحفہ دینا چاہتا ہے داڑھی کا؟ جی دیکھو میں یہاں پر بیٹھ کر چٹکلے تو نہیں سنا، میں جتنی دیر بھی بولا اگر کوئی ایک آدمی بھی نیک بن جائے، کوئی ایک آدمی بھی بعمل بن جائے، میرا آنے کا مقصد بالکل صحیح ہو جائے گا۔ کوئی ہے ایسا؟ اچھا اگر بعد میں سمجھ میں آئے تو حضرت امام صاحب کے پاس آ کر کے بتا دینا کہ یہ تحفہ ہے۔ اچھا دوسرا تھوڑا سا آسان ہے، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ہے ایسا جو کھڑا ہو کر کہے کہ آج سے میں اپنے نبی کو 5 وقتہ نماز کا تحفہ دوں؟ سبحان اللہ۔ ایک اور کوئی ہے؟ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ۔ 2 اور کوئی ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں پہلے سے ہی نمازی ہے، کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں، بیٹھیے۔ کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں آپ کی ساخت کی بات ہے، یہ نماز کوئی کھیل نہیں، نماز کی بات آپ کے کاغذ کھیلنے والوں، آپ کی ساخت کی بات ہے۔ آپ سب کو تحفہ دیتے ہو، اپنے نبی کو بھی 5 وقتہ نماز کا تحفہ دے سکتے ہو؟ ماشاءاللہ، نعرہ لگا دو ذرا سبحان مکمل۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد۔ اچھا لائک مبارکباد ہیں، آپ یہ بزرگ ہیں ہمارے، ہے نا۔ کوئی ایسا نوجوان ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں جو یہ کہے کہ میں پوری آج سے کوشش کروں گا 5 وقت نماز پڑھنے؟ کوئی نوجوان، اس لیے کہ میری تقریر کا زیادہ تر حصہ نوجوانوں سے متعلق ہونے والا ہے کوئی نوجوان اتنے بڑے مجمع میں؟ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ دیکھو یہاں پر جشن ولادت منانا اس کا مطلب بریانی کی دیگیں کھانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد حلوہ و پوری لٹانا نہیں ہوتا۔ جب ہم رسول کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تو ہم کائنات سے یہ کہتے ہیں، کائنات سن لے، آج سے ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، بے شک، سبحان اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنا نہ سکے تو یار ہمارا جینا بیکار ہے۔ قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو سنو، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اکبر فلمی اسٹار کے رویے پر گزار دی۔ ہاں بہت سارے ایسے ہیں جو نیتا اور ابھی نیتا کے پیچھے پڑے رہتے، لیکن قسم خدا کی قبر کے اندر نہ تو نیتا کام آئے گا نہ ابھی نیتا کام آئے گا۔ حشر کے میدان میں نہ نیتا نہ ابھی نیتا، اگر حشر کے میدان میں کوئی کام آئے گا تو یہی آمنہ کا لال کام آئے گا، آمنہ کا لال۔ اور بارڈر پار سے آج بھی آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، محمد سے وفا کی ہے تو ہم تیرے ہیں، شرط ہے شرط، ورنہ یاد رکھے اگر محمد سے وفا نہیں،
मोहम्मद से वफा नहीं तो हम भी तेरे नहीं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। आज दुनिया तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी तरीके से तुम्हारे दिल से तुम्हारे नबी की वफा निकाल दी जाए, नबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। आपको नहीं पता नौजवानों, व्हाइट हाउस में बैठ कर के जमी दो साजिशें हो रही हैं, सफात पे सफात लिखे जा रहे हैं और 1000 किताब, 1000 औरात की किताब औरात पर मुश्तमिल किताब लिखी गई और उसमें ये लिखा गया कि बताओ नौजवानों से, मुसलमानों को नमाजों से कैसे हटाया जाए, रोजों से कैसे हटाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दिलों से अल्लाह अकबर कबीरा इस्लाम का दर्द कैसे निकाला जाए। तो किसी ने लिखा कि नमाजों से दूर कर दो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, रोजों से दूर कर दो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, ज़कातों से दूर करो, इस्लाम से दूर हो जाएंगे, हज से दूर करो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये इस्लाम से दूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा शैतान उठा, उसने कहा नमाजों, रोज और हज ज़कात से दूर करने की जरूरत नहीं, नौजवानों के दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दो। जब मोहब्बत निकल जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें नमाज का एहसास न रहेगा, रोजों का एहसास न रहेगा, हज का एहसास न रहेगा, ज़कात का एहसास न रहेगा। तुम अपने बिस्तरों में पड़े पड़े सोते रहो, व्हाइट हाउस में बैठकर तुम्हारी बर्बादी की दास्तानें लिखी जा सकती। सुभान अल्लाह। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। यहाँ पर बैठ करके अगर मैंने यहाँ पर चुटकुलेबाजी कर ली, कसम खुदा की पूरी, जब से ये शुरू हुई है कहानी, पूरी उम्मत का सत्यानाश लग गया। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हमें चुटकुले सुनाए जा रहे हैं और हम आदी बन गए। अरे साहब, मौलाना नाजिब साहब, मौलाना निजामुद्दीन साहब, कौन से मुकर्रिर को बुला दिया, कोई हंसी की बात ही नहीं कही। तो मौलाना नाजिम साहब लानत भेजे ऐसे इंसान पर कि जो मिंबर रसूल पे बैठ करके चुटकुले सुनाए। इसलिए कि हमें पता है, ये उलमा जानते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं, हमसे कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारा फर्ज है यहाँ पर बैठ करके कि आपको दीन सिखाएं, सीखना न सीखना। हमें मैं आईना हूँ दिखाऊंगा साफ चेहरे के, जिससे बुरा लगे सामने से हट जाए। काकर खेड़े वालों, कोई भी आलिम आपको राजी करने यहाँ नहीं आएगा, अपने नबी को राजी करने के लिए आएगा। अगर उसका नबी राजी हो गया तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम नाराजी से जा सको। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, ये जो साजिशें आज तुम्हारे साथ जमी दोज हो रही है, ये कोई नई नहीं है। हाँ, ये इश्क़ रिसालत तुम्हारे दिल से छीनने वाली साजिश है, ये कोई नई नहीं है। हाँ, देखो मक्के की तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल के नंगे बदन को निकाल दिया गया, उनके सीने पर भारी पत्थर रखकर उमय्या बिन खल्फ बैठता है, कोड़े लगाता है और कहता है देख तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बस तू अपने दिल से अपने नबी के दर्द निकाल दे, नबी की मोहब्बत निकाल दे। अगर तूने नबी की मोहब्बत निकाल दी तो मैं तेरे जख्मों पे मरहम रख दूंगा। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत बिलाल के कदमों पे काकर खेड़े का एक सुन्नी जवान कुर्बान हजरत बिलाल उमय्या की आंख में डाल के कहते थे जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दबा उठाए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाज़े दबा उठाए क्यों। देखो नौजवानों, सुनो, मेरी तकरीर का ज्यादातर हिस्सा नौजवान के लिए, इसलिए कि ये जो सफेद दाढ़ी वाले हैं इन्होंने अपनी जिंदगी का 90% गुजार दिया। अब कौम का मुस्तकबिल नौजवानों तुमसे वाबस्ता है, तुमसे वाबस्ता है। मौलाना शकील साहब, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब और ये तमाम हजरात मस्जिदों में बैठकर फजर की नमाज में क़िबला रू होके हाथ उठा के कहते हैं मौला हमारी उम्मत में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई मर्द मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। लेकिन इनकी दुआएं कैसे काम आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह अकबर जब तक दीन नहीं सिखाएंगे तो खाली दवाओं से क्या काम चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, देखो ना हमारी बस्ती के नौजवानों को देख दो, जब ये घर से कदम निकालते हैं माँ बाप का दिल धड़कता है, पता नहीं किसकी बहू बेटियों पर इल्जाम आने वाला है। देखो ना कौन सा ऐसा नौजवान है। नौजवानों में तुमको बता रहा हूँ, ज़िना के रेशात बढ़ते जा रहे हैं, शराब के रेशात बढ़ते जा रहे हैं, सूद के कारोबार बढ़ते जा रहे हैं और फिर अपने आप को कहते हो अल्लाह अकबर हम रसूलुल्लाह के
ये जन्नत रसूलुल्लाह की? नहीं नहीं, जरा सुनो, सहाबा का मजमा है, सरकार बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए, न जाने कितने, अल्लाह जाने कितने लोग बैठे। इसी भारी मजमे में एक नौजवान खड़ा हुआ और हाथ खड़ा करके ओ काकर खेड़ा के गयूर नौजवानों, जरा सुनो सुनो, दिल के कान से सुनो। हाथ खड़ा करता है नौजवान, कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। इतने बड़े मजमे में हाथ खड़ा करके कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे जिना करने की इजाजत दे दो। तमाम सहाबा का मजमा था। हजरत उमर ने पकड़ के खींचा, अबू बकर ने पकड़ के खींचा, हजरत अली ने पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कि तुझे नहीं मालूम कि तू क्या कह रहा है? क्या तेरा दिमाग क्या है, अपनी जगह नहीं है? क्या तू उस रसूल से जिना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान में आयत आ चुकी है, भला तकरबुज जिना, जिना करना तो दूर की बात, उसके करीब जाना हराम है। उस नबी से जिना की इजाजत चाह रहा है। जैसे ही ये शोर बड़ा, सरकार ने सबको खामोश किया, उस नौजवान को अपने करीब बुलाया, करीब बुला करके बिठा दिया और कहा कि कभी जिना की इजाजत नहीं दूंगा। काकर कह गए गयूर मुसलमानों, अगर तुमने जिंदगी जिनाकारी में गुजारी है तो सुनो सुनो और सबक हासिल करो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं दिखाऊंगा दा, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दा आप चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। या रसूल अल्लाह, माँ को कभी जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले, जरा ये बता, क्या तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बीवी को जिना की इजाजत देगा? खपखपा गया, खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, अपनी बीवी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार ने फिर तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बहन को जिना की इजाजत देगा? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जान दे दूंगा लेकिन अपनी बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता। फिर सरकार ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, ऐ जिना की इजाजत मांगने वाले नौजवान, जरा पता, तुझसे अगर तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे, क्या तू अपनी बेटी को जिना की इजाजत देगा? रोने लगा, कपकपाने लगा, या रसूल अल्लाह, खून का कतरा कतरा बहा दूंगा लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने उसे करीब किया, सीने पे हाथ रखा और कहा, अल्लाह इसके दिल से जिना के ख्याल मिटा दे। और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, वो जिना की इजाजत मांगने वाले, जब तू अपनी माँ, बहन, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दे सकता तो सुन ले, जिसके साथ तू जिना करेगा या तो वो किसी की माँ होगी, या बहन होगी, या बेटी होगी, या बीवी होगी। जब ये जिना तू अपनी बहन बेटी के साथ गवारा नहीं करता तो दूसरा ये जिना अपनी बहन बेटी के साथ कैसे गवारा करेगा? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अगर इससे भी अगर अब भी अगर सुधरने का कोई पहलू ना निकले तो मैं माजरत चाहूंगा। इससे बड़ी दलील मेरे पास, इससे बड़ी दलील माफ करिएगा मेरे पास नहीं, मेरे यार अल्लाह अकबर कबीरा। हम घर से निकलते, नौजवानों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम घर से निकलते हैं, न जाने कितने खानदानों के दिल धड़कते हैं। आज तो हमारे घर की बेटियां निकलते हुए अपने अब्बा से कहती हैं, अब्बा बाजार जाना है, कहते हैं बेटी चली जाओ, कि नहीं, डर लगता। कुत्तों से इतना डर नहीं लगता जितना नौजवानों से डर लगता है। डूब मरने का मकाम है, गली नुक्कड़ों पे खड़े होकर तेरी मेरी बहन बेटियों को ताड़ने वाले नौजवानों, डूब मरने का वक्त है। हमारी घर की बहू बेटियां कुत्तों से गया गुजरा तुम्हें बताती हैं, इसलिए कि फिर वो आगे जुमला बोलती हैं, अब्बा जान हमें कुत्ता काट लेगा तो हमारे जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन ये कम वक्त नौजवान खड़े होकर देखते हैं हमारी रूह को तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुधर जाइए, सुधर जाइए। ये ऐसा मामला है कि जिस हर घर में बेरी का पेड़ है। अगर तुम दूसरे के घर में डेला मारोगे, कहीं ना कहीं से तुम्हारे घर में भी आने वाला है। अगर तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत चाहते हो नौजवानों, तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत करना सीखो। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है, बेशक जरूरी है मेरे प्यारों, जश्न विलादत मना रहे हो, इसी मौके पर आओ, वादा कर लो कि हम इस तरफ कभी नहीं जाएंगे। हाथ खड़ा करके वादा, इंशाअल्लाह। कहता कौन है, लेकिन सब वादा कर लो कि इस रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे। एक साले मुआशरा अगर तब जो है वजूद में लाना है तो सबसे पहले मुआशरे से जिना की बदकारी को दूर करना पड़ेगा। बेशक, इसलिए कि जिना एक ऐसी गंदी लानत है कि जिसके नुतफे से अगर ये पैदा हो गया तो वो एक वलद जिना न जाने
कितनी चीजों को खत्म करके रख देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना अब छोटी छोटी सी उम्र की लड़कियां, अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे तो हजरत बड़ा हैरत, आप जैसे लोग भी बहुत हैरत करेंगे बात सुन करके। और आए दिन सोशल मीडिया पे आती है वो लोग अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करने वालों की बेटियां खंजीर खाने वालों की बाहों में रातें गुजार रही हैं। ये क्या है? ये क्या है? हम आखिर कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमें अपने घर की खबर नहीं। देखो कानपुर और न जाने कितनी जगह ओयो होटल से खबरें आती हैं हमारे सामने की बुरखे में अल्लाह को 4 लड़कियां पकड़ी गई, 6 लड़कियां पकड़ी गई। ये कौन है? ये उम्मत की लड़कियां हैं, ये उम्मत की लड़कियां हैं। और मैं यहाँ पर रुक के, वैसे मौजूद तो नहीं लेकिन फिर मैं इसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा और आपका। हो सकता है आपको मेरा नजरिया समझ में ना आए, पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ना आए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो ओयो होटल पे जा रही हैं इनमें 80% हमारे अकायद, हमारे नजरियात, हमारी सोच का नतीजा। अब कैसे? इसलिए कि हम गरीब की बेटी का हाथ अपने बेटे के हाथ में देना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि वो बूढ़ी हो जाती है। अब क्या करें, नफ्स तो सबके पास है ना, तरबियत तो सबकी अच्छी नहीं होती। हाँ ये है हजरत बैठे हुए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हमारे बताएंगे 16 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, 18 साल की उम्र में, 19 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। आज 30 साल की लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह अकबर, कोई उनका रिश्ता लेने को तैयार नहीं, इसलिए कि उसके बाप के सर पर गुर्बत की पगड़ी बंधी हुई है जो अल्लाह अकबर कबीरा कोई भी उसके सर से उतार कर अपने सर पर नहीं रखने को तैयार है। यही वजह है कि आज ज़िना के रेशात बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए ना अल्लाह अकबर कबीरा, आज मुआशरे का माहौल ये है कि अगर कोई नौजवान खड़ा हो कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो सारा समाज उसे खंजीर से बदतर जानता है। लेकिन हाँ यही सरमायादार जब 6 रखेलों को साथ रखता है तो कोई अल्लाह अकबर इसे ताना देने के तैयार नहीं है, इसलिए कि इसे अल्लाह अकबर कबीरा बड़ा अच्छा सो कोल्ड माना जाता है। मामला तो यही है, मुआशरे का मामला यही है। गरीब शराब पी ले तो अल्लाह अकबर नशेड़ी है, और अगर कोई साहब प्रधान जी MLA MP पिए तो बड़े शौकीन है। शौकीन कुछ नहीं, जो चीज हराम है वो हराम है, चाहे ज़िना हो चाहे शराब हो। और शराब के रेशात में बात करने लगा हो, शराब तो अल्लाह अकबर कबीरा बिल्कुल ऐसे चल रही है जैसे हमारे यहाँ चाय इतनी आम हो गई बात पर हर दूसरा तीसरा चौथा घर मुसलमानों का, हर चौथे घर में शराब की बोतलें खोली जा रही है, हर चौथे पांचवें घर में। और ये